I want your attention. Well, here we take up the question. Start. Compute the different measures. Compute the different measures for the following data. Compute the different measures for the following data. Seven, 3, 10, 7, 12, 15. I want your concentration now. हम क्या करने वाले हैं अभी? For the three types of data, for each of the three types of data, what are the three types of data? Raw data, ungrouped or the discrete frequency distribution, grouped or the continuous frequency distribution. We will be computing all the measures. कल हमने आपको एक असाइनमेंट दिया था, जो भी सेट ऑफ फॉर्मूली यहाँ टेबल ऑफ फॉर्मूली दिया है उसे प्रिपेयर करना एक्सपेक्टेड था, पर जहाँ तक हम आपको पहचानते हैं आपने कुछ किया नहीं है, देखा भी नहीं है उसकी तरफ, क्योंकि आपको देखने के लिए अलग चीज़ें होती है घर में जाने के बाद. तो लुक एट मी, टेल मी व्हाट इज द टाइप ऑफ डेटा. रॉ डेटा. डाटा नो, डेटा. So these will be the raw data, not this is the raw data. Data is always in the plural sense. These are the raw data. And therefore, because these are the raw data, the arithmetic mean x bar is equal to take total upon n is the mean. पहले देखो, ये ए स्टैंडर्ड से कर रहे हैं. टेक टोटल अपॉन n, इसका मतलब होता है मीन. अभी मीन ऑफ व्हाट? मीन ऑफ x. सो इट इज लाइक दिस. सही तरीके से फॉर्मूला लिखेंगे तो मगअप नहीं करना पड़ेगा. सही तरीके से अगर प्रॉब्लम को लिखेंगे या फॉर्मूला को लिखेंगे तो आपके मेमोरी का स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा. तो व्हाट डज दैट मीन? टेक अ टोटल. फर्स्ट स्टार्ट, टेक अ टोटल. टेक टोटल. And the total is what? 54? And therefore this will be 1 upon 6 into 54. Does that come out to be 9? Isha is not 9.166. Isha, you have to do the calculation correctly. Arithmetic mean में भी गड़बड़ करते हो तो फिर कैसे होगा? Isha. ठीक है. अभी what is mode? Mode is an observation with the maximum frequency. Mode is an observation having the maximum frequency. You can see each observation is occurring only once except 7. So frequency of 7 is maximum. Mode is 7. Okay? जिन्होंने पहले कभी भी जिंदगी में ये कैलकुलेशंस को नहीं किया है, पहले अच्छी तरीके से समझो. The way we compute median, we compute first quartile, third quartile, deciles, percentile exactly in the similar way. अभी लिखना बंद करो, पहले मेरे तरफ देखो. अगर आपको पता नहीं है तो first of all,
I consider the observations in the increasing order. Observations in the increasing order. छोटे से बड़े तक. So 3, 7, 7, 10, 12, 15. Clear? Now tell me n is what? How many observations are there? 6. अभी जरा मेरे तरफ देखो, मीडियन हम दो तरीके से निकालेंगे. एक तो है इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द टू सेंट्रल ऑब्जर्वेशंस. इट वुड बी द अरिथमेटिक मीन ऑफ द टू सेंट्रल टू मिडल ऑब्जर्वेशंस. तो फिर यहाँ क्या होगा? द मीडियन विल बी इक्वल टू 7 + 10 एंड दैट ओवर 2 विच इज 8.5. अगर यहाँ n 7 होता तो मिडल will have been the median. If n is odd, had n be 7, 9, etc., the middle observation would have been the median. But अगर n even है तो फिर it is the arithmetic mean of the two central observations. यहाँ लिखो क्योंकि ये भी MCQ है. It is the arithmetic mean of the two middle observations. Of the two middle observations. ये एक तरीका हो गया. और दूसरा तरीका ऐसा है कि द मीडियन इज इक्वल टू n + 1 by 2th observation. So that is going to be 6 + 1 by 2. 7 by 2 is 3.5th observation. अब ये 3.5th observation का मीनिंग ऐसा है कि थर्ड इज कंप्लीट प्लस 0.5 एंड देन फोर्थ माइनस थर्ड. क्या मीनिंग है? कैसे निकालना है? देखो, थर्ड 3.5 ना, तो 3.5 में 3 कंप्लीट है, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 वी आर बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड. अभी अगर काउंट करेंगे तो थर्ड ऑब्जर्वेशन इज 7 प्लस 0.5, फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज 10, 10 minus 7, so 7 plus 0.5 into 3 which is equal to 8.5. And that's the beauty of mathematics. As long as your logic is correct, answer comes to be the same. Is that clear? अगर समझा है तो फिर चेहरे पे दिखाओ, और नहीं समझा है तो पूछो, क्योंकि you know, one more opportunity is not going to be there in your lives to get the marks like on this chapter. Is that clear? अभी जैसे मीडियन को निकाला उसी तरीके से फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 को निकालेंगे, लेकिन क्वार्टाइल्स में हाउ मेनी पार्ट्स? 4 parts. So it will be 1 into n plus 1 by 4th observation. तो इसका मतलब होगा 6 plus 1 by 4, 7 by 4, 7 by 4 is what? 1.75th observation. Now that means this is first observation is complete, plus 0.75, then second minus first. Now first observation is 3, 0.75 into 6, what? 7 minus 1, 6. निकालो कितना आता है? आलं का बाळांनो? रिया आलं का? ऋषी आलं का? सत्यम कितना आया? थ्री प्लस 0.75, 7 minus 3 ना, तो 4. मैंने क्या कहा फिर? कुठे आहे 1? तो ये 6 आया क्या? 6. ठीक है. अभी what about Q2? Mind you well, Q2 is nothing but median. So that we have already found is 8.5. How about Q3? That is 3 into n plus 1 by 4th. That means this is 3 into 6 plus 1, 7 by 4. So ये कितना आता है? 5.25th observation. But 5.25th observation is 5th is complete. Plus 0.25 into 6 minus 5th. Abhi, this 5th observation is what? 5th observation is 12 plus 0.25 into 15 minus 12.
that's 3 is a 12.75. एक बार समझ गया तो ये बहुत आसान है. ये स्कूल लेवल का कैलकुलेशन है. वही तो हमारे लिए प्रॉब्लम था. स्कूल लेवल ही तो प्रॉब्लम. स्कूल में कुछ किया ही नहीं हमने, सिर्फ डब्बा खाया. ऑलराइट, सपोज इफ आई वांट द थर्ड डिसाइल D3, third decile D3, that will be 3. Deciles make how many pass? वो हम लिखेंगे वो, क्योंकि वो भी MCQ है. That is 3 into n plus 1 by 10. So it will be 7 by 10. Is that 2.1? Is that 2.1st observation? So that means second is complete. Plus 0.1 into third minus second. So second क्या है? 7. Plus 0.1. Third क्या है? 7. 7 minus 7, 0. So it is 7. समझा? Deciles make how many parts? 10. How many deciles are there? 9. That we will write it because that is itself a theory MCQ. Anyway, अगर मेरे को निकालना है P31, how will you find P31? It will be 31 into n plus 1 by 100. So that is 31 into 7 by 100. करो कैलकुलेटर पे. कैलकुलेटर पर करो, but can move your fingers fast. 2.17th observation. That means second is complete. Plus 0.17 into third minus second. So then again this is 7. Plus 0.17 into 7 minus 7 is 0. So 7 plus 0, this is 7. आया है? कितना सिंपल है देखो. ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस को तो बिल्कुल इंटेलिजेंस की जरूरत होती नहीं है, इसलिए आप कर सकते हैं. हो गया. तो फिर अभी I want your next measure to be understood carefully, and the next measure is a geometric mean. And mind you well, geometric mean is nth root of the product, nth root of x1 into x2 into x3 up till xn. तो आपने यह केस में कितने ऑब्जर्वेशन है? 6. तो 6th root of, tell me what are those? Will be 3 into 7 into 7 into 10 into 12 into 15. तो ये प्रोडक्ट करो कितना होता है? एक बार कैलकुलेशन देखो, फिर हम थेरी की तरफ मुड़ेंगे, और वो ज़्यादा एक्सपेक्टेड है इन प्रॉब्लम्स के जगह. प्रोडक्ट कर सकते हैं ना, मल्टीप्लाई करो ना. तो दैट इज 6th रूट. कितना प्रोडक्ट आया है? 264,600 एंड दैट रेज टू 1/6. 6th रूट का मतलब होता है रेज टू 1/6. अभी जैसे टाइम वाले में किया था वैसे दैट प्रोसीजर विल फॉलो. 264,600 root 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 12 times, then minus 1 divided by 6, add 1 into equal to 12 times. करो. Coming Wednesday or Thursday, when should we have the test on time value? Second test. Yes, what? I'm asking you Wednesday, Thursday. हो okay. Wednesday nahi, Wednesday. Wednesday is wrong. अरे गावठी good. कुठे गेली ती कालची बाटली? बाटली.
कितो आयो 8.03 आया है. त्याच्याकडे दिले का बाटली? तुला त्या अर्थाने नाही मिळत. बाटली अशी हो गया क्या बाळांनो? Then I come to the harmonic mean. I then turn on to the harmonic mean. Now harmonic mean is equal to n over summation 1 upon x. क्या फॉर्मूला है? n over summation 1 upon x. अगर ये सही है तो n कितना है 6. अभी इस समेशन 1 अपॉन एक्स का मतलब होगा 1/3 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15. अभी इसे कैसे करना है देखो जरा, एक मिनट. आई एम टेलिंग यू हाउ टू यूज दिस कैलकुलेटर. तो एक्स कॉलम क्या है 3. किसी भी ऑर्डर में लिखो, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस. 7 7 10 12 15. आई वॉन्ट 1 अपॉन एक्स और फिर वो 1 अपॉन एक्स का मेरे को चाहिए टोटल. तो हाउ विल यू डू? इट विल बी 1 अपॉन 3 यू वांट ना, एंड देयरफॉर 3 अपॉन इक्वल टू m प्लस. कैसे करेंगे? 3 अपॉन इक्वल टू m प्लस, 7 अपॉन इक्वल टू m प्लस, अगेन 7 अपॉन इक्वल टू m प्लस, 10 upon equal to m plus, 12 upon equal to m plus, and then 15 upon equal to m plus, and then press memory recall. Then press memory recall. हाँ, अभी लिखो मत, वो लिखो मत कितनी कितना नंबर आया है वो. अभी वो अपॉन है कि नहीं, तो इसलिए अपॉन इक्वल टू करेंगे तो वो 1 अपॉन होता है. And just go directly multiply by 6 and you get an answer you want. 6.9. समझा? 6.9 आया. भक्ति, हर्षद, अरे वाह. भक्तीचा नवरा भक्तीला काय मिळेल? भक्तीचा नवरा भक्तीला मिळेल इतना क्यों भक्ती. भक्ति इतना क्यों भक्ति. आया क्या? चांगला होता ना. काय आणि तू त्याला असं कर. आएला है क्या? खोपड़ी में घुसेला है क्या? कहाँ घुसेला है? Okay, look at me now. I move on to the next one, and that is the range. Now, range is nothing but largest minus smallest. आपको सिर्फ क्या करना है एग्जाम के पहले, ये प्रोसीजर्स को देखना है बस. Largest minus smallest, largest being 15, smallest being 3, 15 minus 3 is 12. अभी this is the measure of dispersion. इसका कोएफिशिएंट ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन होगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. ये कंपैरिजन के लिए होता है. So that is L minus S over L plus S, that into 100. So 15 minus 3 over 15 plus 3, that into 100. करो. ये क्या है? रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, ये कोएफिशिएंट ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन है. इट इज फॉर कंपेयरिंग द variations in the 2 or more data sets.
करो बाळांनो. अनुश्री कितना आया? 66.66, 66.67% आया. Good. I then had the quartile deviation. Now this quartile deviation, that is also called semi inter quartile deviation. अब ये नाम ही फॉर्मूला को डेवलप करता है. सेमी मीन्स हाफ, क्वार्टाइल से सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन. तो फिर क्या होगा? Q3 माइनस Q1, ये इंटर क्वार्टाइल रेंज है, एंड दैट डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज दिस इज सेमी. समझा? अभी देयर फॉर व्हाट वाज Q3 निकाला है पहले हमने 12 पॉइंट एंड दैट माइनस Q1 एंड दैट डिवाइडेड बाय 2. ये हो गया क्वार्टाइल डेविएशन. ये हो गया क्वार्टाइल डेविएशन. बट अगर उन्होंने तुमको क्वार्टाइल रेंज पूछा, इफ दे आस्क यू क्वार्टाइल रेंज, देन क्वार्टाइल रेंज is just equal to Q3 minus Q1. Then it is just equal to Q3 minus Q1. सेमी बोला तो डिवाइडेड बाय 2, सेमी नहीं बोला है तो Q3 minus Q1, and therefore it is 12.75 लेस वॉट 6, जो भी आंसर आता है. अभी क्या पूछा है उसके वो कंसिस्टेंट होना चाहिए ना फॉर्मूला, नहीं तो पूछेंगे कुछ, करेंगे कुछ, मिलेगा कुछ. हो गया क्या? गुड. आफ्टर दिस, अब तक वो हो गया ना. स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज करो खुद का, क्योंकि ये सब इजी कैलकुलेशन है. अगर कंसंट्रेशन है तो स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ेगा. लुक, आई कंप्यूट मीन डेविएशन अबाउट मीन. कोई भी लिखेगा नहीं. मीन डेविएशन अबाउट मीन. हाँ, अभी मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये टाइटल ही फॉर्मूला को जनरेट करता है. आपको क्या चाहिए? मीन. व्हाट डू यू मीन बाय मीन? दैट इज टेक टोटल अपॉन एन. ये मीन हो गया. टेक अ पॉज, यहां मीन हो गया. आता किसका मीन? वेरिएशन फ्रॉम मीन, दैट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, दैट इज x माइनस एक्स बार. अभी सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, इसको मॉड्यूलस में इसलिए डालेंगे क्योंकि वी वांट द क्वांटम ऑफ वेरिएशन, अमाउंट ऑफ वेरिएशन. हमें पॉजिटिव निगेटिव में इंटरेस्ट है. पॉजिटिव मतलब ऊपर है एवरेज से, नेगेटिव मतलब एवरेज से नीचे है. हमें उसमें कोई इंटरेस्ट है कितना ऊपर और कितना नीचे, ये वेरिएशन कितना है वो देख रहा है. समझा ना? ऊपर नीचे होगा लेकिन कितना होता है, दैट डिसाइड्स हाउ मच इज द वेरिएशन. समझा? सिमिलरली टेल मी व्हाट इज मीन डेविएशन अबाउट मोड. मीन डेविएशन अबाउट मोड. अभी आप फॉर्मूला जनरेट करेंगे, मगअप नहीं करेंगे. दे विल हैव टू आस्क दिस मीन डेविएशन अबाउट मोड. इसी वर्ड में उनको पूछना पड़ेगा ना. तो वो टाइटल ही फॉर्मूला को जनरेट करता है. क्या लिखेंगे? टेक टोटल अप 1 अपॉन एन नहीं, टेक टोटल अपॉन एन. किसका एवरेज? x माइनस मोड का एवरेज. पुट इट इन द मोड. समझा? मॉड्यूलस का मतलब होता है निगेटिव को पॉजिटिव बनाना. एंड देन यू हैव मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. एंड व्हाट विल बी द फॉर्मूला? टेक टोटल अपॉन n, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस मीडियन. अभी जिसका जिसका सिग्मा चाहिए उन कॉलम्स को बनाना पड़ेगा, बराबर ना? तो क्या कॉलम्स करेंगे? x, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस एक्स बार,
मॉड्यूलस ऑफ x माइनस मोड, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस मीडियन। अभी x वैल्यूज क्या है, नॉट नेसेसरीली इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो ओरिजिनल दिया है वो क्या है, 7, 3, 7, 10, 12, 15. By the way, x bar was what? 9. Mode was what? 7. And median was what? 8.5. So how will that go? It is modulus of 7 minus 9. समझा ना? तो ये 2 होता है, -2 होता है, but modulus is +2. Then 3 minus 9. This will be what? -6 का modulus 6. 7 minus 9. This is 2. 10 minus 9 1. 12 minus 9 3. 15 minus 9 6. अभी ये टोटल करेंगे तो फिर आपको मिलेगा समेशन मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार। सिमिलरली गो डू इट। मॉड्यूलस ऑफ 7 minus 7 0. Modulus of 3 minus 7 will be 4, 0, 3, 5, 8. And this total will be summation modulus x minus mode. है बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, लेकिन आपको करने की बेसिकली क्या है, अर्ज होनी चाहिए, ईगर होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए। विल विल विन, will win. So it is 7 minus 8.5 will be 1.5. 3 minus 8.5 is 5.5. This is 1.5. This is 10 minus means 1.5. 12 minus करो अभी 3.5 and 15 minus 6.5 और फिर इसकी टोटल आएगी summation modulus x minus median. Take your time, but don't take undue time. Go do it. तो फिर बोलो मेरे को, ये पहला टोटल आया तो कितना आया? 20. And therefore this is 1/6 into 20. 3.33. ये सेकंड टोटल कितना आया? सब 20 है। वेरी गुड। तो 1/6 into 20, that is 3.33. And just check whether this is also 3.33. सबकी टोटल 20 आती है। ये कोइंसिडेंस है, हर बार ये सेम नहीं आएगा, नहीं तो बोलेंगे ये क्वेश्चन रॉन्ग है।
हाउ कैन यू इसका येते त्याला छानच म्हणणार ना उसमें क्या है मैंने कंपैरेटिवली थोड़ी बोला इससे ये छान है ये ऑब्जेक्टिवली बोला हो गया क्या अभी आई compute relative measure of dispersion is coefficient of mean deviation about mean coefficient of mean deviation about mean हाँ अभी ये भी फॉर्मूला ही डेवलप करता है टाइटल विल जनरेट अ फॉर्मूला कोइफिशिएंट ऐसा आया तो फिर मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है मीन डेविएशन अबाउट मीन इट इज द मीन डेविएशन अबाउट मीन दैट डिवाइडेड बाय अभी ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इसमें क्या इन्वॉल्व है मीन एंड दैट मल्टीप्लाइड बाय 100 अभी ये मीन मीन कैंसिल होगा क्या हाँ नहीं होगा ना तो मामा की पत्नी मामी है तो काका की पत्नी वो कैसे आएगा वो मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे सर मामा मामा ओवर मामी इज इक्वल टू काका over what I will say x so cross multiplication x into mama is equal to mami into kaka your kaka into mami so x is equal to mami यहाँ क्या है काका into mami काका into mami that divided by मामा अभी ये a cut mm cut you are left with ka ki ka समझा क्या सी द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स कौन किसके ऊपर है वो भी डिसाइड चलो तो फिर अभी करो ये कैलकुलेट सिमिलरली टेल मी व्हाट विल बी कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मोड व्हाट विल बी कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मोड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन about mode that is mean deviation about mode mean deviation about mode upon mode जिंदगी के इस मोड पे मोड का समझना जरूरी है into 100 so this will become 3.33 that divided by 9 into 100 in this case this is 3.33 over 7 into 100 and coefficient of mean deviation about median coefficient of mean deviation about median is mean deviation about median upon median into 100 so coefficient of mean deviation is about mean is 3.33 median yeah median is 8.5 my dear नहीं काय हो ना 3.33 over 8.5 into 100 निकालो कितना था
हो गया? हो गया क्या बाळांनो? I then consider variance. I then consider the variance. Variance बोलने का नहीं, it is variance. Now variance sigma square. What varies is a variance. How much does it vary? That is variance. Varai म्हणतो का आपण? No, we say vary. Yes, everything has a reason, but the concept without reason is like rain without season. Everything is washed out. So variance sigma square, variance sigma square. Basic formula is take total upon n x minus x bar the square. But upon simplification, we are going to use this formula 1 upon n summation x square minus x bar the square. 1 upon n summation x square minus x bar the square. तो अभी तुम मेरे को बोलो कि विच कॉलम वी नीड टू मेक हियर x एंड x स्क्वायर. तो x एंड x स्क्वायर. सो 7 स्क्वायर 49, 3 स्क्वायर 9, 7 स्क्वायर 49 करो. This is 100, this is 144, this is 225. This is going to be summation x square. x बार हमने पहले ही निकाला है, तो फिर अभी सिर्फ समेशन x स्क्वायर को निकालो. And therefore this is 1 upon 6. What is summation x square? 576. हाँ, लेकिन ये 576 को ही सिर्फ 6 डिवाइड करता है और फिर माइनस 9 द स्क्वायर. दिस विल बी योर वेरियंस. अनुश्री, ईशा, पार्थ गुपचुप. तो कितना आया? वेरियंस कितना आया? Exact 15. Okay. And then we require the last standard deviation, that is sigma. Standard deviation sigma is what? Is root of 1/5, na? What is that? 3.87. And then we require Carl Pearson's. We require then Carl Pearson's coefficient of variation. Coefficient of correlation is different. This is coefficient of variation, CV, abbreviated as what? CV, which is sigma over x bar into 100. So that was suggested by Carl Pearson, na? That is Pearson's coefficient of variation. ये पियर्सनचा पियर्स साबणाशी काही संबंध नाही. 3.87 that divided by 9 into 100. हो गया क्या? अभी जरा 1 मिनट मेरे तरफ देखो. दैट इज फॉर द सेक ऑफ थेरी.
Look at me. Stay focused. Look. Stay focused. Always remember there is one median that divides the data into two equal parts of 50% each. But 50% means n by 2 each. So there is one median that divides the data into two equal parts. Data into two equal parts. One median divides the data into two equal parts. Similarly, there are three quartiles. एक मिनट प्लीज. ऐसा लगता है आपको कि आपको पता है, लेकिन वो आइन वक्त पे नहीं आता है, इसलिए आपको थोड़ा सा उसको जस्टिस देना पड़ेगा अभी. हाउ मेनी क्वार्टाइल्स आर देयर? 3. फर्स्ट क्वार्टाइल Q1, second quartile Q2, third quartile Q3, and each of these part is worth 25%. But when you say 25%, then it means 1/4 of n. So this is also 1/4 of n. This is also n by 4. This is also n by 4. So there are three quartiles. There are three quartiles. So divide the data into 4 equal parts. Divide the data into 4 equal parts. And then there are 9 deciles. D1, D2. At the center there is D5. And last is not D10, last is D9. And each part is 10%. अगर यह सही है तो this each part is n by 10. And therefore there are how many deciles? 9 deciles. ये भी MCQ है, मॉड्यूल में है ये MCQs. ऐसा तो ऐसा किसी को भी हल्के में मत लो. There are 9 deciles that divide the data into 10 equal parts. छोटा ही सही, लेकिन MCQ तो है. 1 मार्क का MCQ होगा तो 1 मार्क मिलेगा. बड़े से बड़ा क्वेश्चन, डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन भी 1 मार्क देता है, ये भी 1 मार्क देता है. तो दिस इज बेटर ना. अभी similarly there will be 99 percentiles. P1, P2, center will be P50, last will be P99. So there are 99 percentiles. 99 percentiles, those divide the data into 100 equal parts of 1% each. So this is 1%, this is 1%. By the way, this is n by 100. This is also n by 100. Each part is n by 100. अभी इसमें से कुछ MCQs डेवलप होते हैं. देखो मेरी तरफ. My question to you is, tell me, मीडियन के नीचे कितना डेटा है? 50%. Q2 के नीचे कितना डेटा है? 25 plus 25. That's 50%. D5 के नीचे है 10 10 10 10 5 times, that's 50%. और P50 के नीचे 1 1 1 1 50 times, that's 50%. How much data is below that? That is important. And therefore, what we observe is that what is median is nothing but Q2, is nothing but D5, is nothing but P50. Why? Because 50% data below each one of them. They might ask a question, Q3 is equal to P what? Q3 is equal to P what? आप में से बहुत सारों को लगता होगा कि ये जिंदगी में पहली बार आया है, बराबर ना. लेकिन ये किया है तुमने पहले, किया करना एक्सपेक्टेड है. क्या करना?
हां नाही तर म्हणाल की सरच म्हणले करणं एक्सपेक्टेड आहे. नाव Q3 will be equal to P75. Why? Because 75% data will be below each of them. I then ask you the question, how much data is above P60? तो ये P60 के अबाउ चाहिए, and therefore P60 मतलब क्या? The 60% data is below each. So rest of the 40% data will be above it. So the answer is going to be 40%. समझा ना? ये कंसेप्ट को समझो. गेलो होता. Okay. And then fourth, look at me. I ask you, between what limits the middle 40% data lies? Middle 40% data lies. इस तरीके का क्वेश्चन. मिडल 40% डेटा लाइज. अभी जरा मेरे तरफ देखो. मिडल 40% मतलब ये बीच में कुछ तो भी होगा, और जो बीच में होता है उससे 20% इधर आना है और 20% इधर जाना है. अभी ये लिमिट्स मेरे को चाहिए. तो ये 20% है तो ये वैल्यू हो गई P30. 30% बिलो हो गया ना यारे. हाँ, और ये हो गया 50 + 20, तो दिस वैल्यू विल बिकम P70. 20% P50 के ऊपर ना, बीच वैल्यू जो वैल्यू है वो P50 है, तो उसे 20% नीचे आएंगे तो P30 मिलेगा, और 20% ऊपर जाएंगे तो P70 मिलेगा. सो दैट इंटरवल इज P30 to P70, but P30 is nothing but D3, and therefore it could be D3 to D7. Would be D3 to D7. ये समझा क्या? धीरज, वंशिता, हो गया? Is that clear? I give you the question, now you will try it on your own. Raw data ही हम डिस्कस कर रहे हैं अभी. ये रब करूँ? रब करूँ? बोलूँ रब करूँ क्या? तो फिर take up the question. For the following data, A minus 2B, A minus B, A plus B, A plus 2B, find mean, second, mode, third, median, fourth, range, fifth, variance. Of course, and then standard deviation and coefficient of variation. हाँ, अभी जरा 1 मिनट मेरे तरफ देखो. अगर क्वेश्चन लिखा है तो मेरे तरफ देखो. Look, are the frequencies given? No, observations are given, na? So because the observations have been given directly, therefore the type of data is what? Raw data. सर समझने की कोशिश करो. Therefore the data would be raw data. So what happens is that first of all, arithmetic mean x bar is take total upon n of x. So you can make a column. It will be A minus 2B, A minus B, A,
ए प्लस बी, ए प्लस 2b, टेक टोटल। और जब टोटल करेंगे तो फिर यार बी बी की टर्म कैंसिल होगी एंड यू विल बी लेफ्ट विथ टोटल व्हाट। तुम करेंगे क्या कोशिश? तो समेशन एक्स विल बी 5a। ए बी बी की टर्म कैंसिल होगी ना, इट विल बी 1/5 into 5a which is what a। समझा? समझ कर करेंगे ना तो फिर कॉपी करेंगे तो क्या फायदा है? अभी इस मोमेंट पे भी अगर कॉपी कर रहे हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है। फिर नेक्स्ट रिवीजन बैच। Now my question is, tell me, do you find any observation which is occurring more number of times than others? All observations have same frequency 1111 and therefore mode cannot be found. If all observations have equal frequencies, mode cannot be found। ये theory हम बाद में लिखेंगे, पर अगर यहाँ वो does not exist ही option को mark करना पड़ेगा ना। And therefore write down the reason, since all observations have equal frequencies, all observations have equal frequencies, mode does not exist, mode does not exist। ये मोड एग्जिस्ट ही नहीं होता। कम से कम एक ऑब्जर्वेशन लार्जर फ्रीक्वेंसी से होना चाहिए। समझा? सबकी फ्रीक्वेंसी अगर इक्वल है तो फिर द मोड डज नॉट एग्जिस्ट। हो बड़ा। अभी मीडियन के लिए क्या करेंगे? तो वैसे ही यही इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना। अभी हाउ मेनी n इज इक्वल टू 5 ना, सो द सेंट्रल ऑब्जर्वेशन इज द मीडियन, सेंट्रल ऑब्जर्वेशन इज द मीडियन। ऑड है ना, तो ऑड के लिए जो मिडल ऑब्जर्वेशन होता है वही मीडियन होता है। तो व्हाट इज दैट? ए। सो मीडियन इज व्हाट? ए। व्हाट अबाउट रेंज? रेंज करेंगे क्या तुम? अभी करो, स्टार्ट, आई एम वेटिंग, गो गेट इट। हो गया? हाँ, तो रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट इज a प्लस 2b माइनस a माइनस 2b। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये a कैंसल होगा और 2b प्लस 2b इज 4b। समझा? अगर ये आंसर आया है तो फिर वेरिएंस के तरफ जाएंगे। आया क्या ये? वेरी नाइस। तो फिर अभी वेरिएंस ये रब करूं क्या? तो फिर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? दैट वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज 1/n समेशन x स्क्वायर माइनस x बार द स्क्वायर। तो हमें x स्क्वायर का कॉलम करना पड़ेगा। मतलब x स्क्वायर का मतलब हो गया a माइनस 2b द ब्रैकेट स्क्वायर, बट x माइनस वाई द ब्रैकेट स्क्वायर 10 स्टैंडर्ड तक किया था ना तुमने। तो इट विल बिकम a स्क्वायर माइनस 2 into 2b is 4ab प्लस 4b स्क्वायर।
This is a minus b the bracket square is a square minus 2ab plus b square. This is like a square. Then a plus b the bracket square is a square plus 2ab plus b square. And this is a plus 2b the bracket square is a square plus 4ab plus 4b square. और फिर इसकी टोटल करो तो समेशन एक्स स्क्वायर, ये सब ए बी की टर्म्स है वो कैंसिल होगी. ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर इट विल बी 5 ए स्क्वायर. 4 will it be what, 10b square? Will that be 10b square? Yes, because I know it now, so that cannot be a challenge to what I know. Okay, हो गया. Now my question to you is, if that is true, अगर ये value यहाँ substitute करेंगे तो this will be like 1/5 5a square plus 10b square minus ये a का square. So 5 कॉमन निकाला तो 5/5 a square plus 2b square minus a square. तो a square भी कट होके 2b square रहेगा. ये वेरिएंस है तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट ऑफ वेरिएंस मीन्स इट विल बी लाइक √2b. and coefficient of variation is sigma over x bar into 100, so it will be √2b that over a into 100. या into 100 लिखो नहीं लिखो doesn't make a difference. If you want a percentage, multiply by 100. If you don't want percentage, keep it like that without 100. हो गया क्या? Good. So that was the calculation confined with what? Raw data. I take up the second type of data and tell me what would be the second type of data. Ungrouped or discrete frequency distribution, and take up the question. Compute the different measures for the following data. Observations 2, 4, 7, 9, 10. With the frequencies being 3, 2, 5, 12, 8, or for that matter
समझा क्या आपको? गुड. नाउ टेल मी व्हाट इज द टाइप ऑफ डेटा. अनग्रुप फ्रीक्वेंसी. अभी जरा 1 मिनट मेरे तरफ देखो. ये ऑब्जर्वेशन इज एक्स एंड फ्रीक्वेंसी इज एफ, और ये फ्रीक्वेंसी की जो टोटल होती है दैट इज कैपिटल एन विच इज सिग्मा एफ विच इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी. कितना है टोटल फ्रीक्वेंसी? 30. ये समझा? दिस इज 30. समझने की कोशिश करो. फॉर दैट मैटर यू हैव टू लुक एट मी. अभी I need to find what is arithmetic mean. Now arithmetic mean का बेसिक फॉर्मूला है टेक टोटल अपॉन एन ऑफ एक्स. लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी दी है, जरा 1 मिनट मेरे तरफ देखो. अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो फिर हम एक इसमें क्या मॉडिफिकेशन करेंगे? मल्टीप्लाई बाय एफ. कल लिखा है हमने multiply by f inside the sigma and replace small n by capital N. Replace small n by capital N. तो यही फॉर्मूला बनेगा 1/N समेशन f इंटू एक्स. सिग्मा के अंदर f से मल्टीप्लाई करो. आई एम टेलिंग यू द डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला विदाउट मगिंग अप. Don't take the things to your memory, take the things to your intelligence. और जो है ही नहीं. तो फिर tell me which column we need to make? fx. तो यहाँ fx का कॉलम कैसे करेंगे? कैलकुलेटर पर it will be 2 into 3 is equal to m plus 4 into 2 equal to m plus. और फिर मेमोरी रिकॉल MRC करेंगे तो समेशन एफ एक्स मिलेगा. करो 200. सो दिस विल बी 237 डिवाइडेड बाय 30. 7.9. ये मीन हो गया. हो गया क्या? Is that over? Now we consider the mode. How do we find the mode? Observation having the maximum frequency. Having the maximum frequency. So tell me which observation has the maximum frequency? 9. 9 means what? Out. Na in is out. I didn't. Quotation. Quotation. लास्ट ईयर थे वो ब्लश होती. हाँ काय ब्लश होती. एवढी चांगली नाही. आता त्याची पंचायत झाली. इज इन डायलेमा. इज इन डायलेमा. ही काय म्हणलं ही एवढी चांगली नाही आहे. तर तो हो म्हणाला तरी पंचायत नाही म्हणलं. त्याला काय म्हणतात? त्याला म्हणतात पॅराडॉक्स. Silence is acceptance. बाळांनो हो गया क्या? हाँ, अभी जरा मीडियन और क्वार्टाइल और डिसाइल के लिए मेरे तरफ देखो. यहां हम क्या करेंगे? थोड़ी सी अलग मेथड, जो शायद पहले स्टूडेंट यहां नहीं थे उनके लिए अलग लगेगा, लेकिन आई एम टेलिंग यू द इजियर मेथड.
समझने की कोशिश करो, इट्स वेरी इजी। अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेशन करने में कोई मजा नहीं है, अननेसेसरी फॉर्मूले मगअप करने में कोई सेंस भी नहीं है। व्हाट आई विल डू इज आई विल फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से आपको नहीं सिखाया गया होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? 3 3 plus 2 is 5 5 plus 5 is 10 10 plus this is 22 and that plus 8 is 30। हाँ, अभी जरा मेरे तरफ देखो। What I will do is I will consider observation number and inside the bracket I will write observation। अभी इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 1 2 3, दैट ऑब्जर्वेशन इज 2। समझा? तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1 2 3 ऑब्जर्वेशन इज 2। कैसा है? 2 की फ्रीक्वेंसी 3 है कि नहीं? तो 2 ऑकर्स 3 टाइम्स, 2 2 2, सो 1 2 3, दैट ऑब्जर्वेशन इज 2। अभी फोर्थ से लेकर यहां क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 है कि नहीं? तो ऑब्जर्वेशन नंबर 4 और 4 and 5 is that observation is 4। So it's very simple, 4 comes 2 times ना, तो 4 4 पहले क्या हो गया था? 2 3 टाइम्स आया है, 2 2 2, फिर इट विल बी 4 4। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 4 and 5 दैट ऑब्जर्वेशन इज 4। ऐसा है। अभी 6 से लेकर 10 तक दैट ऑब्जर्वेशन इज 7। 11 से लेकर 22 तक ये है 9 और 23rd से लेकर 30 तक दैट ऑब्जर्वेशन इज 10। ऐसा है। थोड़ा अलग तरीका आई एम टेलिंग यू द लॉजिकल मेथड मोर देन मगिंग अप द फॉर्म्युला। ये नाही समजा तो आप नाही कह सकते हो। परत सांगू? किती गोड, मी मला कसं कळलं? लुक, ती अशी बघत होती त्याच्या। लुक, स्टे बैक। ये क्या है? अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसे मैं रॉ डेटा में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा? 2 ऑकर्स 3 टाइम्स, दैट मीन्स 2 2 2। उसके बाद 4 कम्स 2 टाइम्स, दैट मीन्स 4 4। इसके बाद 7 कम्स 5 टाइम्स, 7 7 7 7 7। इस तरीके से अनग्रुप डेटा को रॉ डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1 2 3 दैट ऑब्जर्वेशन इज 2। फिर ऑब्जर्वेशन नंबर 4 and 5 दैट ऑब्जर्वेशन इज 4। फिर 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन इज 7। आता कळलं का? तो फिर क्या होगा कि दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ की 3 है कि नहीं? तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1 2 3 दैट ऑब्जर्वेशन इज 2। फिर 4th से स्टार्ट होगा, 5 तक आएगा, दैट ऑब्जर्वेशन इज 4। फिर 6 to 10 that observation is 7, or you can see this 6 to 10। Why do I feel I'm a good teacher? Because I can even convince the girls। अभी 11 से लेकर 22 तक, यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 है ना, दैट ऑब्जर्वेशन इज 9। और फिर 23rd से लेकर 30 तक दैट ऑब्जर्वेशन इज 10। समझा? ओके, तो फिर अभी मेरे तरफ देखो। अभी अभी जॉब आसान हो गया, अभी और रॉ डेटा जैसे ही हो गया। लुक, फर्स्ट आई वांट इज मीडियन। दैट मीडियन इज n+1/2th ऑब्जर्वेशन। हाँ, स्मॉल एन की जगह सिर्फ क्या होगा? कैपिटल एन। बट कैपिटल एन कितना है? 30। तो 30 + 1 दैट बाय 2, 31/2। 31/2 is what? 15.5th observation।
है कि नहीं, 31/2. So 15.5th observation. That means this is 15th observation is complete. Plus 0.5. We have 16th observation minus 15th observation. कळलं कळलं का? अभी ऑब्जर्वेशन नंबर 15 और 16 ये दोनों भी इसी क्लास में है ना, तो दोनों ये दोनों भी ऑब्जर्वेशन क्या है, 9 है. 15 16 दोनों भी इसी क्लास में है ना, 11 to 22. हे कळतं का तुम्हाला? And therefore 15th observation is 9 plus 0.5 into into 9 minus 9, and therefore this is 9. आप हमको दो आईपैड. हो गया क्या? अभी I want first quartile Q1, that is 1 into n plus 1 by 4th. That means 30 plus 1 by 4, 31 by 4. 31 by 4 comes to be what? 7.75th observation. That means 7th is complete. Plus 0.75 into 8 minus 7. अभी 7वां ऑब्जर्वेशन और 8वां ऑब्जर्वेशन दोनों भी 6 to 10 में है कि नहीं? तो दोनों भी ऑब्जर्वेशन 7 ही है. तो दिस इज 7 प्लस 0.75. 7 minus 7 is 0. 7 plus 0 is 7. देखो कितना इजी है. अभी यह इजी बन गया. नहीं तो फिर आपको कैसे बताया गया है? फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. Observation having the cumulative frequency first time greater than or equal to n by 2 है ना, और n odd है तो n plus 1 by 2. ये ऐसा कॉम्प्लिकेशन क्यों करने का? ये इजी इनोसेंट मेथड है. हो गया क्या? तो फिर निकालो. अभी तेरे पास क्या है जो तू निकालेगा? फाइंड आउट D7, फाइंड आउट P71. स्टार्ट. दिया है आपको वक्त. Get it. Practice makes man perfect. So if you are perfect, it means you are a man. इतना कॉपी मत करो, अपना अपना करो. एक आंख स्क्रीन की तरफ, एक आंख नोटबुक की तरफ.
कब बदलोगे आप? कालो का कला होना नहीं चिकला होना नहीं काय हाँ तू लिहिलं नाही का बाळा? How about Q3? Q3 is 3 into n plus 1 by 4. 3 into n plus 1 by 4th observation. That means 3 into 31 by 4th observation. How much is that? 23.25th observation. So 23rd is complete. Plus 0.25. 24th minus 25th. अभी ऑब्जर्वेशन नंबर 23, 24 ये दोनों भी लास्ट क्लास में आते हैं. So that observation is 10 plus 0.25 into 10 minus 10 is 0. So this happens to be what? 10. हो बेटा कहो ना समझ गया. हो गया क्या? D7 is 7 into n plus 1 by 10th. So 7, 31 by 10. What is that? 21.7. So 21st is complete. 0.7. 22nd minus 21st. अभी observation number 21 and 22 both are what? 9. So this is 9 plus 0.7. 9 minus 9 which is what? 9. अभी करो P71 और मेरे को बोलो सेम लाइन्स पे. 9.01. That's okay. So that is the 71st percentile. क्या मतलब है उसका? 71% of the data lies below 9.01. काय पडलं? काय पडलं? देख केडिया तेरा कितना इम्पैक्ट है. चीजें गिरने लगती है. हो गया क्या? I now turn on to the geometric mean. Geometric mean is equal to, stop talking. Same thing, only little difference is now it is capital Nth root. x1 raised to f1, x2 raised to f2, dot dot dot. So this is going to be 30th root of. Now it will be 2 raised to 3 into 4 raised to 2 into 7 raised to 5 into 9 raised to 12 into 10 raised to 8. तो शायद ये आपके कैलकुलेटर के कैपेसिटी के बाहर जाएगा.
मतलब बड़ा नंबर आएगा ना, तो फिर इसे ब्रेक करो। तो यू कैन ब्रेक इट एज, अगर ये बहुत बड़ा नंबर आ रहा है और आपके कैलकुलेटर के कैपेसिटी के बाहर जाके वो ई एरर दिखा रहा है, तो यू कैन ब्रेक इट। इट इज द 30th रूट ऑफ 2 raised to 3, 4 raised to 2, 7 raised to 5, कहीं भी ब्रेक करो, ऐसा कोई नहीं है। और फिर 30th रूट ऑफ 9 raised to 12 इंटू 10 raised to 8। इस तरीके से करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये ऐसा इस तरीके से कैलकुलेशन अभी एग्जाम में नहीं आने वाला, बिकॉज इट्स टू लार्ज नंबर। फिर सिर्फ कंसेप्ट के लिए समझो। देन टेल मी 30th रूट कैसे निकालेंगे? रूट 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 12 टाइम्स -1 डिवाइड बाय 30 देन +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। हो गया क्या? होमवर्क करेंगे? ये होमवर्क करके करेंगे क्या? कैलकुलेशन करना है सिर्फ। और देन हार्मोनिक मीन विल बी इक्वल टू कैपिटल N ओवर समेशन F अपॉन X। तो क्या कॉलम करना पड़ेगा? X F F अपॉन X, और फिर इसकी टोटल करो। करेंगे ये दो चीजें होमवर्क। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? ग्रुप डेटा भी फिनिश करेंगे, फिर थेरी स्टार्ट। थेरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं आने वाला, समझा? ओके देन गुड बाय। तो फिर वेंसडे थर्सडे ना, क्या बोला? थर्सडे वी विल बी हैविंग द सेकंड टेस्ट। उसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा भी डालू क्या सेकंड टेस्ट में? पढ़ाई करो ना थर्सडे तक, मतलब कितने काफी दिन है। काय तुम्ही